So let us discuss regarding the next colligative property, that is osmotic pressure. So friends, you know very well about osmosis. Osmosis is the phenomena of movement of the solvent from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. Means semi-permeable membrane is required. Then that is osmosis. You are very well known. But what is the osmotic pressure? If the osmosis is going on, osmosis हो रहा है और उस osmosis प्रोसेस में सॉल्वेंट का मूवमेंट को रोकना है, रोकने के बाद रोकने के लिए जितना प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड द इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, this equation is just similar to the equation of ideal gas. In class 11 we had discussion regarding this equation, PV equal to nRT. This is ideal gas equation. This is ideal gas equation, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant, T is the temperature. Like this, बिल्कुल ऐसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला बना है. ओनली इन प्लेस ऑफ दिस P they had chosen pi, so pi V is equal to nRT. This N means again the number of moles of solute. We are taking 1 for solvent and 2 for solute. So the number of moles of solute means, as we know that number of moles of solute means weight of solute upon molecular weight of solute. So therefore this equation becomes, if we write, or before writing this, just see this equation in this manner. इसको थोड़ा सा अलग समझते पहले. Just see this pi is equal to n upon v if we write RT. N means the number of moles per unit volume. That number of moles per unit volume means is the concentration. So we can write pi is equal to concentration into R into T. This equation is also important. So osmotic pressure, concentration into this. So osmotic pressure depends on the concentration. It means that this equation tells osmotic pressure concentration पर डिपेंड करता है. अब इस फॉर्म में लिख के देखते हैं हम लोग. This is the pi and V is volume. If we are writing another manner, pi V equal to W2 upon M2 into R into T. And with the help of osmotic pressure, we need to calculate the value of M2. So in the form of M2, if we write this, M2 इधर चला गया तो we have W2 into R into T upon pi to V. Is the one. So again, this equation is very, very helpful like other equation. This equation is very, very helpful like other equation of other colligative property. बाकी जो colligative property है ना, उस colligative property के जो equation है उसमें भी हम लोग molecular mass कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह इससे भी हम molecular mass कैलकुलेट कर सकते हैं. अब osmotic pressure पढ़ते समय हमको और एक दो पॉइंट को ध्यान रखना है. So that 1-2 points are, as we know, the osmotic pressure, the pressure required to stop the osmosis. Okay, but if the solution, if the two different solutions are there having same osmotic pressure, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दो सोल्यूशन है लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार जैसा था ना, वैसे ये टर्म है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने वाले कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. आइसोटोनिक सोल्यूशन, this is the solution which having same osmotic pressure. Means these 2-3 terms which are required
टू नो इन दिस टॉपिक, ये एक टर्म है। दूसरा, द नेक्स्ट टर्म इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, HYPERTONIC, हाइपरटोनिक। हम लोग बोलते हैं ना, और ये हाइपर हो गया, हाइपर हो गया मतलब बढ़ गया, तो ज्यादा हो गया। ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए या जो कॉन्सेंट्रेशन, वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा, जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उससे ज्यादा अगर है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए उस ऑस्मोटिक प्रेशर से कम। टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, NaCl कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इज 0.9%, अगर उससे ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो सेल्स श्रिंक हो जाएंगी ऐसा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उससे कम हुआ तो ऐसा एग्जांपल दिया। सो ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वी मस्ट नो दिस थ्री थिंग्स। एंड फोर्थ वन which is again important is reverse osmosis. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, ऑस्मोटिक प्रेशर वो जिससे ऑस्मोसिस रुकता है, ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मीन्स द प्रेशर अप्लाइड मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, फ्लो उल्टा हो जाएगा। इसलिए साल्ट, सलाइन वाटर है या साल्टी वाटर है, उसमें से अच्छा अच्छा पानी बाहर निकलता। अपने यहाँ आरओ नहीं रहता, आरओ अपने घर में तो आरओ है, दैट आरओ इज हैविंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर द ऑस्मोटिक मोर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज देयर दैट osmotic pressure, isotonic solution, hypotonic solution and reverse osmosis. So the next topic after getting the complete idea about colligative property is van 't Hoff factor. Actually, van 't Hoff was one scientist. He gave information, उसने देखा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे हैं, सभी के सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास with the help of colligative property. And the definition of colligative property is the property which depends upon only number of मोलिकुल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नॉट देयर नेचर। कितना अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टी इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात यह आती है कि 2 ग्राम में, 4 ग्राम में, 15 ग्राम में, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाने के बाद वेदर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कम इन द सॉल्यूशन में आने के बाद क्या वो डिसोसिएट होता है, क्या वो एसोसिएट होता है, या कुछ नहीं होता। दिस आर द 3 पॉसिबिलिटी। लेकिन नॉर्मली आयनिक सोल्यूट जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, इनको पानी में डालते जैसा NaCl इट प्रोड्यूस Na प्लस एंड Cl माइनस। KCl है तो इट प्रोड्यूस K प्लस एंड Cl माइनस। MgCl2 है तो इट प्रोड्यूस Mg+2 आणि 2 Cl माइनस। So likewise dissociation occurs, but one thing we want to observe that if benzoic acid is taken in solution, when benzoic acid dissolve in the solution, पानी में डिसॉल्व होते ही बेंजोइक एसिड, 2 बेंजोइक एसिड मिलके एक बन जाता है, एसोसिएशन। दिस इज डिसोसिएशन। यहां क्या हो रहा है, 2 बेंजोइक एसिड के मोलिकुल मिलके एक ऐसा बड़ा मोलिकुल बना रहे, और यहां क्या हो रहा है, 1 के 2 बन रहे। ये सारी बातों से रियलिटी में जब
मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से, तो एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल आती नहीं है, वो गड़बड़ आती है। अब आप ही समझो एक बात, सीधी सीधी बात, ये ने Cl का ये ने अलग हो गया, Cl अलग हो गया, एंड बोथ आर शोइंग देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। तो जो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू या तो इसके करीब करीब आएंगे या इसके करीब करीब आएंगे। यानी चाहिए थी 50-60 के करीब आने, 58 समथिंग आना चाहिए, लेकिन आएंगे 30 के आसपास, तो आधी आ गई ना। अब यहां देखो, बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास है 122, लेकिन दो बेंजोइक एसिड मिलके एक हो रहे, तो सॉल्यूशन में डायमर 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 दो दो मिलके रहेंगे ना, तो आंसर जो आएंगे वो 244 आएंगे ना। अब ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर मास तो बिल्कुल सही नहीं आएगी, आएगी नहीं सही, तो क्या करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये वार्टॉप ने एक फैक्टर बनाया, उसका नाम उसने लिखा आई, और हम भी उसको मस्त याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। हम लिखेंगे आई ना, हम लोग बोलते हैं आईना, आरसा, आईना, ग्लास, तो हम लिखेंगे आई ना। सबको पता है आईना, आईना मतलब I इक्वल टू Na, सो दिस इज द नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास in solution. The value of I is equal to normal molecular mass upon abnormal molecular mass in the solution. Now, if we take the example of benzoic acid, this benzoic acid we will write C6H5C double bond O OH. This is one molecule, and C6H5 C double bond O and H. This is another molecule. When they are in the solution, they form hydrogen bonding and form dimer. So in place of 122 molecular mass, they are getting 244. And like this dissociation, if NaCl, if we are taking the example of NaCl, Na23 plus Cl 35.5, that is equal to 58.5. But when we calculate, it is equal to nearly 30. आना चाहिए इतना, आ रहा है इतना, आना चाहिए इतना, आ रहा है इतना। तो क्या हुआ, अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल मोलिकुलर फॉर एग्जांपल आई फॉर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के लिए आई की वैल्यू कैलकुलेट कर। नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना है 122 और एबनॉर्मल कितना है 244। सो व्हाट इज द वैल्यू 1/2। ओके, अब एक काम करेंगे, हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेकंड एग्जांपल, आई फॉर NaCl। NaCl के लिए कैलकुलेट करते। सो नॉर्मल मोलिकुलर मास इज 58.5 and abnormal molecular mass is 30. So you get nearly 2. So in case of dissociation, the value is more than 1, and in case of association, value is less than 1. In case of association, the value is less than 1. Okay, so this value, if you put in all equation of कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वैल्यू अगर सभी में पुट करेंगे तो फिर एक्चुअल आंसर आएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखने के लिए मैंने एक बढ़िया ऐसा एक चार्ट बनाया, इसको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, बीच में लिखना है 1, ठीक है। अब ये जो एसोसिएशन है,
एसोसिएशन में जो वैल्यू है आई की वो 1 से कम है, मतलब 1 ज्यादा हो गया, 1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, आई की वैल्यू 1 से कम हो गई, आई की वैल्यू 1 से कम हो गई एसोसिएशन में। और डिसोसिएशन में देखो आई की वैल्यू ज्यादा होगी 2। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, इधर लिखना है हमको ए, इधर लिखना है हमको डी। अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली तो कैसे भी याद रख सकते हैं ना, अल्फाबेटिकली ए पहले लिखेंगे डी बाद में लिखेंगे, ये इस तरह आपको ध्यान रखना है। और ये जैसे ही आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारे के सारे जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं। ओके, सो द वांट ऑफ फैक्टर इज अप्लाइड इन एवरी इक्वेशन एज वी नो दैट दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर relative lowering of vapor pressure. This equation is relative lowering of vapor pressure. This equation is elevation in boiling point. This equation is equation for depression in freezing point, and this equation is for osmotic pressure. Okay, so every equation we are using for calculating the molecular mass. So the mass of that particular molecule, if undergoing association or dissociation, the actual value will differ. So to get the actual value मिलने के लिए हमारे को क्या करना है, सबसे पहले आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब एक बार आप लोगों के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आई की वैल्यू भी पूछते हैं, जैसे कोई भी है, जैसा लिखते MgCl2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। अब इसको अगर डिसोसिएशन अगर इसका होता है, इफ द डिसोसिएशन इज देयर, इट प्रोड्यूस Mg+2 Cl Cl-, so it is the dissociation. So dissociation में क्या, I is equal to नॉर्मल जो वैल्यू है, जो नॉर्मल जो वैल्यू जो भी रहेगी इसकी, है ना, जो नॉर्मल वैल्यू है इसकी, इसके वैल्यू से ये जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी ये 1/3 आएगी। कैलकुलेट जो वैल्यू है ये 1/3 आएगी, मतलब आई इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू अपॉन एबनॉर्मल वैल्यू। सो एबनॉर्मल वैल्यू विल बी 1/3, किसी की भी वैल्यू आएगी तो 1/3 आएगी, और जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर ये क्योंकि 3 पार्ट में होगी ना, तो यहाँ पर होगा 1, इसको ऊपर कर दे तो आंसर आ जाएगी 3। गॉट इट। अब इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी करते रहोगे, इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करते रहना, बहुत सोपा सादा उपाय, बहुत सोपा उपाय। MgCl2 मतलब 2 और 1 3, द वांट ऑफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज 3, सीधा सीधा। MgSO4 है, MgSO4, SO4 एक और Mg है, द वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2। ऐसा NaCl है, एक Na एक Cl, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2। KOH है, एक OH एक K, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। AlCl3 है, तो 3 और 1 4। बहुत सोपा करेगा, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलो हमको करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, द वैल्यू ऑफ आई वी हैव टू पुट इन एवरी इक्वेशन, ये ऐसा है, देन यू विल गेट द एक्चुअल आंसर। ये सब में वैल्यू डालना है आपको, तब कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर इस ये चैप्टर में जितने भी पोर्शन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप के, उसमें 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले करीब करीब सेम, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास जो है वो जैसे भी कैलकुलेट करते तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है। इफ एसोसिएशन इज देयर द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट, डिसोसिएशन है तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डिफरेंट आएगी, इसलिए आई की वैल्यू वहां पुट अप करना है। नॉर्मली आपके कोई भी सीईटी में मॉलिक्यूल का ये दिया होगा, फार्मूला दिया होगा, आई की वैल्यू पूछेंगे, तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद में आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, वो न्यूमेरिकल हमने पहले लिए थे, और भी आप न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कर लेना।
Okay.